Welcome. Hello, everyone. Last class we have studied about the modules of operating system. Like operating system acts as a process manager, memory manager, file manager, device manager, production manager. We have also discussed about what is kernel of nucleus and how what is Von architecture and how it gets executed in the program. It also works on stored program concept we have discussed in this previous classes. We have also differentiated between the primary memory and secondary memory, that what are ALUs and how they functions in the computer system. Quite impressive topics there. We have also discussed a fantastic concept, that is what is a test file compiler, how compiler executes its file, how the file get converted to exe files, and then to the memory, and how after the memory get executed and works and things are done. Now in today's lecture, what we're going to learn is that we'll continue further. In the last topic, we have studied the functions and goals of operating system, like convenience, and we have studied what is the primary goal of operating system. The primary goal is convenience, but for personal computing. Actually, an operating system has various features. If we talk about the personal computing, the primary goal is convenience. You, everybody using a personal computer like Windows, laptops, they're using it using general tasks like programming something else, etc. Are basically focuses on convenience, that how things are done, how we as a user can't go further, can't do use things like programming for playing music or something like that, uh, odd jobs for some simple tasks. That's why we refer convenience. But convenience is not a primary goal in computing environment. Like if you talk about real-time system, RTS. Actually, real-time system are two types. First is soft real-time system. Like we have mentioned this. Second is hard real-time system, and first is soft real-time system. So, in real-time systems, the primary goal, the main goal is efficiency. Like hard real-time systems, for example, ATM machine. Let's uh, let's access with simple words like, for example, hard real-time system. When we talk about missile control, like NASA, ISROs are doing, they're controlling missiles. They're also using some operating system. They're not using like Windows XP or Windows 10. कंप्यूटर में वो नहीं इंस्टॉल होगा कि विंडोज एक्सपी यूज कर रहा है, एक्सपायर कर गया तो फिर मिसाइल्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री में चला गया, नहीं. दे नीड्स टू बी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट. उनका सर्वर एक सेकंड के लिए डाउन नहीं हो सकता, एक मिली सेकंड के लिए डाउन नहीं हो सकता, तो उनका कंट्रोल कहीं से कहीं और हो जाएगा. तो दे आर जस्ट स्ट्रिक्ट रियल टाइम, हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स, सैटेलाइट कंट्रोल, न्यूक्लियर सिस्टम. They can't rely on any as usual operating system that we are using as a user, where we thought about convenience. But they thought about not convenience, they thought about the efficiency, the accuracy, the battery efficiency, battery not battery, they talk about just efficiency. Like this is hard real time system, where the time there must be a fixed deadline in hard real time system. Example, soft real time system is ATM machine. When we make a transaction, it may be get delayed for sometimes like 10 minutes, 15 minutes. ऐसा तो आ ही जाता है, पर वो कुछ डिले चलता है. पर मिसाइल कंट्रोल्स में वो डिले नहीं चलेगा. जिसमें कुछ डिले चलता है, थोड़ा सा टाइम गैप चलता है, उस टाइम गैप को, उस सिस्टम को हम सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम बोलते हैं. और जिसमें एकदम मिली सेकेंड्स का भी डिले नहीं चल सकता, उसे हम हार्ड रियल टाइम सिस्टम बोलते हैं. नेक्स्ट, आई थिंक आई हैव डिस्कस दिस इन प्रीवियस क्लासेस. Let's move to this another concept like mobile OS. Mobile OS का मेन गोल इज बैटरी एफिशिएंसी. जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजीज आती जाएंगी, हम ऑपरेटिंग सिस्टम को और ऑप्टिमाइज करते चले जाएंगे. जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने मोबाइल ओएस में क्या किया, हमने बैटरी एफिशिएंसी एक फैक्टर डाल दिया. ये भी फैक्टर काफी डिपेंडेंट होता है इस केस में. नेक्स्ट, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. So batch operating system, multi-programmable operating system, time sharing, real-time operating system, network operating system, and distributed operating system. So network operating system or distributed operating system, they are also known as advanced operating system in technical or commercial language. Network operating system and distributed operating system are also known as advanced operating system, while others are known as basic operating system like that. So if you talk about the generation of computers,
Nobody will gonna explain you or ask you about this generation of computers. The first generation of computers was on 1930s to 1940s. Like जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था, तब से कंप्यूटर्स चल रहे हैं, हमें तो बहुत बात पता चला. तो उस समय कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था. देयर वाज नो ऑपरेटिंग सिस्टम इन that era. So between 1940s and 1950s, there was the era of magnetic tapes. Like magnetic tapes are connected. Like to store information, we store in magnetic tapes. Like to processing, like basically what is computer? Computer is sharing of data. So for sharing of data, we use magnetic tapes. Next, in 1950s, 1960s, we use magnetic discs. Now that tape has been rolled up to made a disc. That disc first there was a floppy disk, the floppy disk, and then the floppy disk is later converted into hard disks. So basically, magnetic disks are of two types. Two types you can say, or you can say two phases, or two types mainly. So there are two types: uniprogrammable or multi-programmed. Uniprogrammable or multi-programmable, you can say that. So what is uniprogrammable? As a name suggests, uni means one. Okay, the ability of the operating system to hold a single program in the memory. क्वाइट क्लियर विद द डेफिनेशन. यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का वो एबिलिटी जिसमें कि वो एक प्रोग्राम सिंगली होल्ड कर सके. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लेट सपोज हमारे पास एक प्रोग्राम है हार्ड डिस्क, हमारे पास लेट सपोज एक सी प्रोग्राम है, हमने कुछ लिया, चलो सम का एक प्रोग्राम बनाया, सम का एक प्रोग्राम है अपने पास. वो कहाँ स्टोर होगा हमारे पास? वो हमारे हार्ड डिस्क में स्टोर होता है. कभी भी कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, हमने सेव किया तो हमने वो हमारे हार्ड डिस्क में स्टोर होता है. अगर हम उसे उसे एक्सेस करना है तो उसे क्या करेंगे? पहले तो डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा. ठीक है, अब उसे रन करेंगे तो रन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या होता है, आप उसे अगर ओपन कर. ओके ओके. सो पहले हार्ड डिस्क पे था फर्स्ट प्रोग्राम, देन इट गोज टू मेमोरी, रैम पे. हार्ड डिस्क से रैम पे गया. रैम में भी हमारे पास दो तरीके के स्पेसेस होते हैं. पहला होता है सिस्टम एरिया, नेक्स्ट इज यूजर एरिया. सिस्टम एरिया में ऑपरेटिंग सिस्टम लाइज करता है, और यूजर एरिया में प्रोग्राम्स आते हैं. सो इसमें प्रोग्राम वन जो था, हमने जिसमें डबल क्लिक किया डॉट डॉट, तो प्रोग्राम वन प्रोग्राम यूजर एरिया पे खुला, रैम के रैम की यूजर एरिया पे ओपन हुआ. अब उसके बाद अब उसका जब प्रोसेसिंग शुरू होता है तो वो फिर सीपीयू में ट्रांसफर किया जाता है. सो इस केस में क्या होता है कि यूनिप्रोग्रामेबल ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे एग्जांपल एम एस डॉस जो कि पुराने जमाने में चलता था, पुराने जमाने मतलब एक्सपी के आने से भी पहले एम एस डॉस, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम. सो उस जमाने में जो प्रोग्राम वन था, वो सिंगल प्रोग्राम हमारे रैम में आ सकता था. दिस इज द मेन डिफरेंस कि यूनी प्रोग्रामेबल है, सिंगल प्रोग्राम इन द मेमोरी. मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कैन होल्ड ओनली सिंगल प्रोग्राम इन द मेमोरी. बट इन केस ऑफ is multi-programmable operating system, you can say that there are multiple programs and the multiple programs can rely in the memory. Like रैम में मल्टीपल प्रोग्राम स्टोर हो सकते हैं. ये मेमोरी रिजर्व है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, सिस्टम ऐसे एरिया, यानी कि सिस्टम मेमोरी, सिस्टम एरिया. पर यूजर एरिया में मल्टीपल प्रोग्राम्स आ सकते हैं. यहाँ पर यूजर एरिया में कितने प्रोग्राम्स आ रहे थे? सिंगल. यहाँ पर मल्टीपल आ सकते हैं. देयर इज अ कैच जो कि बहुत लोग से मिसकंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है. कैच क्या है? इस मल्टीपल सिंगल प्रोग्राम और मल्टी प्रोग्राम प्रोग्रामेबल का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि ये इसमें एक एक प्रोसेस है तो ये जल्दी काम करेगा, और इसमें मल्टीपल प्रोसेस तो ये उससे भी जल्दी काम करेगा. इन द सेंस लाइक दैट कि अगर इसमें सिंगल प्रोसेस है तो ये प्रोसेस फिर सीपीयू में ट्रांसफर होगा. जब इसका काम खत्म हो जाएगा तो ये आगे बताऊंगा क्या होता है इसका. तो ये मान लो हट गया है वहां से, फिर प्रोसेस टू आएगा, फिर प्रोसेस टू सीपीयू में जाएगा. बट सीपीयू में एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोसेस आ सकता है. दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट कि सीपीयू विल एक्सेस विल एग्जीक्यूट वन प्रोसेस एट अ टाइम, चाहे वो यूनी प्रोग्रामेबल में हो या मल्टी प्रोग्रामेबल में हो. भले ही रैम में हम मल्टीपल प्रोसेसेस को रख सकते हैं, रैम में हम मल्टीपल प्रोसेस को स्टोर कर सकते हैं, पर एग्जीक्यूट एक टाइम पे एक ही करेगा. लाइक दैट, प्रोग्राम वन को हमने डबल क्लिक किया, ओपन हुआ. यहाँ पर प्रोग्राम टू पे करेंगे तो भी ओपन हो जाएगा, थ्री फोर सब ओपन हो जाएंगे एक बार में, और ये वेट करेंगे. वेट किस बात का करेंगे? अपने टर्न आने का. तो लेट सपोज प्रोग्राम टू की बारी आई पहले, ठीक है, प्रोग्राम टू की बारी आई, तो प्रोग्राम टू विल रन, सीपीयू में रन करेगा, और जैसे ही प्रोग्राम टू खत्म हो जाएगा तो फिर वो रिलीज कर दिया जाएगा. सो ओनली वन प्रोग्राम runs in the CPU, जो कि मैंने बताया. दिस इज मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ लेट्स रीड अबाउट द कैप्शंस. Theory we need to learn. Okay.
तो इसका कुछ ड्रॉबैक्स है। पहला ड्रॉबैक ये है कि सिंगल प्रोग्राम इन मेमोरी इज नॉट इनफ, यानी कि ये सफिशिएंट नहीं है to keep the CPU always busy. You understand? अगर सिंगल प्रोग्राम है, this is not enough to keep the CPU but always busy. Our main goal is to maximize the utilization of CPU processing. So this will resultantly decrease or throughput or efficiency will be less, as we are know. What is throughput? Number of program completed upon unit time. एक particular time में कितने programs complete होते हैं, उसका थ्रूपुट यानी कि इफिशियंसी कम हो जा रही है। आप खुद सोचो ना, एक गिवन टाइम में हम एक प्रोग्राम रन कर पा रहे थे, वो तो बहुत कम है। दिस इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ इट। और मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या है, एबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू होल्ड मैनेज मल्टीपल रेडी टू रन प्रोग्राम्स इन द मेमोरी। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइजिंग सीपीयू यूटिलाइजेशन और मैक्सिमाइजिंग थ्रूपुट। मैक्सिमाइजिंग सीपीयू यूटिलाइजेशन, सीपीयू को यूटिलाइज करना है देखो, और थ्रूपुट को इंक्रीज करना है। थ्रूपुट मींस एक पर्टिकुलर टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस को, जैसे प्रोग्राम्स को हमें रन करना है। नेक्स्ट इज लाइक दैट दिस मल्टीपल प्रोग्राम्स है, सारे के सारे प्रोग्राम्स रैम में आए, रैम में आने के बाद सीपीयू में एग्जीक्यूट किए, और मल्टीपल एक बार एग्जीक्यूशन खत्म हुआ, फिर नेक्स्ट प्रोग्राम, फिर नेक्स्ट प्रोग्राम, नेक्स्ट प्रोग्राम, ये सब चलता जाएगा। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ सीपीयू अमंग डिफरेंट डेफिनेशंस, प्रोग्रामिंग मेमोरी। तो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट कि यूनि प्रोग्रामिंग क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है। ओके, बेसिकली ये लाइन थोड़ी सी आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। ये मल्टी प्रोग्रामिंग एक्सप्लेन कर रही है। हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे मल्टी प्रोग्रामिंग में। तो मल्टीप्लेक्सिंग कुछ अलग चीज़ होती है। मल्टीप्लेक्सिंग में बताऊंगा, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं मल्टीप्लेक्सिंग में और मल्टी प्रोग्रामिंग में, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दे आर अनदर डेफिनेशन। मल्टीप्लेक्सिंग मतलब होता है कि सीपीयू को डिवाइड करना। अभी हम सीपीयू को कांस्टेंट रखें कि एक प्रोग्राम एक सीपीयू में रन करेगा, मतलब सीपीयू में रन करेगा सिंगल प्रोग्राम सिंगल टाइम पे। पर मल्टीप्लेक्सिंग में कुछ और हो जाता है, तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज, वो अभी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, इज टाइप्स ऑफ माइक्रो मल्टी प्रोग्रामिंग। ओके, तो मल्टी प्रोग्रामिंग भी दो तरह के होते हैं। दो तरह के मल्टी प्रोग्रामिंग होते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग हमने पढ़ा, मल्टी प्रोग्रामिंग दो तरह के होते हैं। पहला इज नॉन प्रीएम्प्टिव, दूसरा इज प्रीएम्प्टिव। सो यू हैव, आई थिंक यू हैव हर्ड दिस टर्म, प्रीएम्प्टिव क्या होता है, नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होता है। इफ यू हैव नॉट हर्ड, दैट्स ओके, आई विल एक्सप्लेन यू। सो बेसिकली बहुत सिंपल टर्म्स है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ओके, एक कमजोर इंसान है, लेट्स सपोज एक कमजोर इंसान है और एक ताकतवर इंसान है। तो दोनों को मिलके एक काम करना है। लेट्स सपोज एक काम हो रहा है, लेट्स सपोज एक रूम है यहाँ पे, ओके। अब ये कमजोर इंसान इस रूम में है, अब ये ताकतवर इंसान को इस रूम में आना है, तो ये क्या करेगा, तो ये कमजोर इंसान को बाहर बोलेगा निकलो यहाँ से, और वो रूम में एंटर कर जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो, मैं एक्सप्लेन करूंगा इसे। व्हाट इज नॉन प्रिएम्प्टिव? नॉन प्रिएम्प्टिव मीन्स वो ताकतवर इंसान जो कि अ, उस रूम से बाहर ना निकले, और वो ताकतवर इंसान उस रूम में है तो वो रूम से बाहर नहीं निकलेगा। और प्रिएम्प्टिव मीन्स वो रूम से बाहर निकल गया, वो कमजोर इंसान जो रूम से बाहर निकल गया। अगर आप ये इस डेफिनेशन से और कंफ्यूज हो गए तो मैं और आपको और कंफ्यूज नहीं करूंगा। आपको ये बताऊंगा सीधा कि नॉन प्रिएम्प्टिव मीन्स नो फोर्सफुल डीलोकेशन। इट मीन्स एक प्रोसेस अगर सीपीयू में है तो वो सीपीयू से तब तक नहीं जाएगा जब तक उसे या तो वो अपने एग्जीक्यूशन को, अपने जो काम है उसको पूरी तरह से खत्म ना कर ले, और उसे कोई इनपुट या आउटपुट लेना ना पड़े बाहर से, तब तक वो काम करेगा। Running a program on CPU will not be forced to leave the CPU. It will release voluntarily. Voluntarily मतलब means that कि तब तक वो खुद ही रिलीज होगा। In the sense, let me explain. अगर हमारे पास सीपीयू है, ये सीपीयू है हमारा सीपीयू, इस पे एक प्रोसेस है पी, कि पी कब तक चलेगा, इसे हम अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकाल सकते। ये तभी निकलेगा जब इसका काम खत्म हो जाए, या इसको बाहर किसी से यूजर से इनपुट या आउटपुट लेना हो, तभी ये बाहर निकलेगा। ये तब तक अंदर ही रहेगा, सीपीयू का काम खत्म ही करेगा। ओके, तो दिस इज नोन एज नॉन प्रीएम्प्टिव, यानी कि ये खुद ब खुद खत्म नहीं होगा। सेकंड इज प्रीएम्प्टिव। व्हाट इज प्रीएम्प्टिव? प्रीएम्प्टिव इज फोर्सफुल डीलोकेशन, यानी कि सेम काम, अगर ये सीपीयू है अपना सीपीयू, इसमें क्या है, अगर एक प्रोग्राम है पी, तो इस पी प्रोग्राम को, लेट्स सपोज हमारे पास एक और प्रोग्राम आया पी टू, इस पी टू प्रोग्राम की हम लोग बोलते हैं
प्रायोरिटी प्रायोरिटी इसकी बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा मैं बताऊंगा कैसे ज़्यादा है। तो अगर इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है पी से, तो ये क्या करेगा, इसे हटा देगा, ये खुद अंदर चला जाएगा और पी को बाहर निकाल देगा। सो पी क्या हुआ, पी का प्रियम्पशन हो गया। सो पी इज प्रियम्पटिव, अंडरस्टैंड, पी का प्रियम्पशन हो गया। पी टू, और फिर यहाँ पर नेक्स्ट टाइम पी बाहर निकल गया और पी टू इसके अंदर सीपीयू में आ गया। अब पी चाहेगा अगर इसको निकालना तो क्या वो निकाल सकता है? नहीं, क्योंकि पी टू की प्रायोरिटी पी से ज़्यादा है। तो पी टू की प्रायोरिटी अगर पी से ज़्यादा है तो ये इससे पी नहीं निकाल सकता। तो ये कब बाहर निकलेगा? ये तभी निकलेगा जब ये अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर ले, या तो इसे बाहर से कोई सिस्टम का कॉल लेना हो, या इनपुट लेना हो, या आउटपुट लेना हो, तभी ये बाहर निकलेगा। दिस इज नोन एज preemptive and non-preemptive processes. Okay, so preemptive we have understand. So program running in CPU can get forceful relocation of CPU preemption, while waiting for programs can get the chance to run on CPU. So इसका objective क्या है? To improve interactiveness and improve increase responsiveness. इसीलिए सो प्रियम्पशन बेस्ड ऑन प्रायोरिटी एंड टाइम, दो तरीके से हम लोग प्रियम्पशन बेस्ड होता है। सो नॉन प्रियम्पटिव में कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। लैक लीड्स टू स्टारवेशन ऑफ अदर प्रोसेसेस, और लैक ऑफ इंटरएक्टिवनेस एंड रिस्पॉन्सिवनेस। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज दिस। सो लेट्स सपोज हमारे पास सीपीयू सेम कंडीशन है, सिमिलर कंडीशन था कि P2 ने क्या किया, P2 ने धक्के मार के P1 को बाहर निकाला, P1 को बाहर निकाला धक्के मार के P2 ने। अब P2 मान लो बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत बड़ा प्रोसेस इन द सेंस कि मान लो P2 का काम है एक 100 पेज, एक 1000 पेज की पीडीएफ को रीड करना। तो P2 अब रीड करता रह जाएगा। लेट सपोज इसे रीड करने में 1 घंटा लग गया, 1 आवर्स इसे बस रीड करने में लग रहा है। तो क्या बताओ, क्या ये P1 यहाँ बाहर खड़ा रहेगा और P2 रीड करता रहेगा? क्योंकि P2 को प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो P2 सीपीयू तो छोड़ेगा नहीं, तो P1 तो बाहर रह गया। तो P1 विल फेस फॉर अ कंडीशन कॉल्ड स्टारवेशन, स्टारवेशन लीड करेगा। दिस इज द प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम है। P2 नहीं अब सीपीयू को लीव करेगा क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, या तो उसके टाइम को हम लोग प्रायोरिटाइज करते हैं। हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें होती है। P2 लीव नहीं करेगा, दिस लीड्स टू स्टारवेशन फॉर P1, एक पी के लिए स्टारवेशन हो जाएगा। और दिस लैक्स इंटरैक्टिवनेस, अगर ये सिंपल प्रोग्राम हमारे सीपीयू में बस चलता ही रहेगा और कोई प्रोग्राम चलेगा ही नहीं, तो ये इंटरैक्टिवनेस को लैक कर रहा है, रिस्पॉन्सिवनेस को लैक कर रहा है। सो अगर हम किसी तरह से इस P2 को रिस्पॉन्सिव कर दे, रिस्पॉन्सिव कैसे करेंगे? अगर हम इसमें प्रियम्पशन डाल दे, तो प्रियम्पशन डालने पे हमारी क्या दो चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। पहले ही इंटरैक्टिवनेस सॉल्व हो जाएगी, तो P1 वापस आ जाएगा, तो इंटरैक्टिव हो जाएगा हमारा सिस्टम। लेट सपोज हमारे पास ये विंडो है, अगर मैं ऐसे इसको ऐसे करूँ तो देखो ये कैसे रिस्पॉन्सिव है, लाइक इंटरैक्ट कर रहा है मेरे से। अगर इस तरह का फिनोमिना हो तो मैं इसको नीचे कर ही नहीं पाऊंगा। देखो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, ये नीचे नहीं जा रहा, और अभी मैं ट्राई कर देखो कैसे इंटरैक्ट हो गया। प्रोसेस वन प्रोसेस टू दोनों एग्जीक्यूट कर रहे हैं सिंगल टाइम पे, और दिस इंप्रूव्स रिस्पॉन्सिवनेस। इसीलिए हम प्रियम्पशन और नॉन प्रियम्पशन को यूज करते हैं। आई थिंक आई हैव डिस्कस मच अबाउट दिस टॉपिक। सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर, लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट इज मल्टी प्रोग्राम सिस्टमैटिक व्यू। क्वाइट सिंपल, मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा। सो लेट्स सपोज हमारे पास एक जॉब का क्रिएशन होता है, जॉब कुछ भी होता है, जॉब कोई काम होता है, कोई प्रोसेस होता है, ठीक है। तो प्रोसेस सबसे पहले रेडी क्यू में जाता है। यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्यू, बस ऐसा समझो कि क्यू एक स्टेट है, मतलब कुछ तो हो रहा है, ऐसा मानो। वो रेडी में पहले जाता है, रेडी स्टेट में पहले जाता है। रेडी स्टेट में जाने के बाद वो सीपीयू को एग्जीक्यूट करने के लिए देता है, और सीपीयू अगर वो एग्जीक्यूट कर जाता है, अगर वो एग्जीक्यूट कर जाता है तो जॉब टर्मिनेट हो जाता है। यानी कि मान लेते हैं काम है जैसे म्यूजिक प्ले करो, तो म्यूजिक प्ले करने का काम से मिला, तो म्यूजिक प्ले करने का काम पहले रैम में जाएगा, रेडी क्यू मीन्स रैम में जाएगा। रैम के बाद वो सीपीयू में एग्जीक्यूट करेगा, तब क्योंकि तब कोई भी चीज़ रैम में एग्जीक्यूट नहीं कर सकती, उसे सीपीयू में चाहिए ही चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए, चाहे कितना भी छोटा टास्क हो, कितना ही बड़ा टास्क हो। तो वो सीपीयू में गया, सीपीयू में एग्जीक्यूट हुआ, अगर वो म्यूजिक प्ले हो गया, उसका काम खत्म हो गया, तो वो जॉब टर्मिनेट कर जाएगा। पर अब अगर उसे पूछना है कि कौन सा म्यूजिक प्ले करना है यूजर से, तो वो क्या करेगा, वो सीपीयू में रहेगा, पर वो स्टेट चेंज कर लेगा अपना, वो रिक्वेस्ट भेजेगा यूजर को, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे कौन सा म्यूजिक प्ले करना है। तो फिर यूजर उसे कुछ बताएगा, अच्छा तुम ये वाला म्यूजिक प्ले करो, तो फिर वो वापस वो वाला म्यूजिक लेके रेडी स्टेट में चला जाएगा, उसके बाद वो वापस जाएगा सीपीयू में। सो दिस इज द साइकिल, और जैसे उसका काम खत्म हो जाएगा वो टर्मिनेट कर जाएगा। दिस इज द साइकिल, दिस इज द लाइक सिस्टमैटिक व्यू क्या होता है। नेक्स्ट इज आर्किटेक्चर, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं।
अगर एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करें, उसके हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं। सो बेसिकली हमने मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्या सीखा। पहले ये सीखा कि उसमें जो प्रोसेस होते हैं वो प्रोसेसेस रैम में रहते हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस रैम में होल्ड कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें मल्टीपल प्रोसेसेस रैम में होल्ड कर सकते हैं, कौन से पोर्शन में रैम के, यूजर पोर्शन में। क्योंकि सिस्टम पोर्शन में या सिस्टम लाइक सिस्टम एरिया में ऑपरेटिंग सिस्टम स्लाइस करता है, यूजर एरिया में हमारे प्रोग्राम स्लाइस करते हैं। अगर मल्टीपल प्रोग्राम्स उसमें हैं तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। अगर सिंगल प्रोग्राम है तो उसे यूनिक प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट, हार्डवेयर आर्किटेक्चर क्या होने चाहिए। तो बेसिकली हमारे पास एक डीएमए होना चाहिए। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं आने वाला है, पर मैं बता सकता हूँ कि क्योंकि प्रियम्पशन, हम यहाँ प्रियम्पशन की बात कर रहे हैं, तो डीएमए की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। तो कोई भी प्रोसेस अगर डीएमए उसे कोई भी, आपको अगर नहीं सुना हो तो ये वैसे सीओए का पार्ट है, डीएमए क्या होता है, ये सीओए में पढ़ना है हमें। डीएमए क्या होता है, तो अगर कोई भी एक्सेस, एक डीएमए एक डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस है, अगर कोई भी प्रोसेस डीएमए के थ्रू एक्सेस मतलब पास होता है तो उसकी प्रायोरिटी बहुत ज्यादा होती है। मैं इतना बता सकता हूँ आपको। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होनी चाहिए जिससे हम इनपुट आउटपुट ले सके, तभी तो कोई सीपीयू से बाहर निकल के इनपुट लेगा। कहाँ से इनपुट लेगा, डीएमए से इनपुट लेगा। अ, तब वो ब्लॉक स्टेट पे जाएगा। नेक्स्ट, तो बात की बात बाद में देखते हैं। नेक्स्ट इज, उसमें एक रैम होनी चाहिए उसके एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए। अब एड्रेस ट्रांसलेशन क्या होता है, तो बेसिकली एक सीपीयू जब भी एक्सेस करता है, इसमें एक प्रोसेस एक्सेस होता है, तो सीपीयू एक लॉजिकल एड्रेस प्रोड्यूस करता है। So this is hardware term again. You don't need to understand each and everything. You just uh, try to connect the dots. जो मैंने एक्सप्लेन किया उसके लिए अब बस डॉट कनेक्ट करो। सो सीपीयू के बाद वो सीपीयू क्या करता है, कोई भी प्रोसेस को एक्सेस करने के बाद उसका एक लॉजिकल एड्रेस प्रोड्यूस करता है। फिर वो लॉजिकल एड्रेस एमएमयू में, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट में जाता है। एमएमयू के थ्रू वो कन्वर्ट होता है लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में, और फिर फिजिकल एड्रेस के थ्रू वो मेमोरी में जाता है। दिस इज द सेम। नेक्स्ट इज सीपीयू प्रोसेसर। लाइक सीपीयू के पास दो हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, यूजर मोड होता है, कर्नल मोड होता है। कर्नल मोड इज प्रिविलेज मोड एंड यूजर मोड इज नॉन प्रिविलेज मोड। सो दिस इज द थिंग। तो इसको हमने स्विच करने के लिए क्या करते हैं, यूजर मोड टू कर्नल मोड में स्विच करने के लिए हम मोड बिट का इस्तेमाल करते हैं। रजिस्टर होता है, एक रजिस्टर होता है जिसमें अगर हम मोड बिट, रजिस्टर की बिट के वैल्यू अगर जीरो पुट करते हैं तो वो कर्नल मोड में चला जाता है, और वन पुट करते हैं तो वो यूजर मोड में चला जाता है। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, इसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास देखनी पड़ेगी। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। दिस इज, हम जो स्विचिंग करते हैं यूजर मोड टू कर्नल मोड में, दिस इज नोन एज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। आपने इसका टर्म को सुना होगा, इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम नेक्स्ट। यूजर मोड मैं बताया था पिछले क्लास में, यूजर मोड क्या होता है, ऑल यूजर एप्लीकेशंस रन इन यूजर मोड। यानी कि वो मोड जो यूजर्स एक्सेस करते हैं, जो और मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस नहीं कर पाता है, ऐसा बोल सकते हो। जो यूजर एक्सेस करते हैं, यूजर के जो एप्लीकेशन होते हैं, फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम जो हाँ देख रहा, ब्रेव, ये सब चीजें यूजर के लिए है। ये सब चीजें यूजर डिलीट भी कर सकता है। ये सब चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, पर कुछ कुछ चीजें लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम रूटीन्स प्रोग्राम्स, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम्स होते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेसेस होते हैं, दिस आर और कर्नल मोड्स। लाइक यूजर मोड में प्रीएम्प्टिवनेस होता है, यानी कि अगर यूजर मोड का एक ऑपरेशन है, लेट्स सपोज P1 है, ये यूजर मोड का ऑपरेशन है, और ये एक सीपीयू में रन कर रहा है। और कर्नल मोड का एक ऑपरेशन आया पीके, लेट्स सपोज पीके कर्नल मोड का एक प्रोसेस है, और पीके को रन करना है, तो पीके क्या करेगा, P1 को बाहर फेंकेगा एक बार में कि तुम निकलो। क्यों, क्योंकि तुम यूजर मोड से हो, यूजर मोड की कोई वैल्यू नहीं है। ये कर्नल मोड की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। ये ये ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड प्रोसेसर होते हैं, उनकी वैल्यूज, उनकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो अब ये पी के रन करेगा, P1 बाहर निकल जाएगा। दिस इज द थिंग। सो यही है कि जो कर्नल मोड्स के प्रोसेसर होते हैं, जो ऑपरेशंस होते हैं, वो नॉन प्रिएम्प्टिव होते हैं, यानी कि वो नॉन प्रिएम्प्टिव होते हैं। उसको एटॉमिक बोलते हैं। एटॉमिक मीन्स वो प्रिएम्प्ट नहीं करते। और जो यूजर मोड के होते हैं वो प्रिएम्प्टिव होते हैं, यानी कि वो प्रिएम्प्ट कर सकते हैं। दिस इज द थिंग। एक चीज है, जैसे यूजर्स, जो हम यूजर से वो यहाँ पर अलाई करते हैं। सो कंप्यूटर हार्डवेयर इज द लीस्ट थिंग। कंप्यूटर हार्डवेयर कुछ भी होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर के बिल्ड ऊपर बिल्ड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर हार्डवेयर में कौन सा हार्डवेयर कहाँ एक्सेस करेगा, क्या एक्सेस करेगा, इट इज अ रिसोर्स मैनेजर। हम बोलते हैं ना, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ रिसोर्स मैनेजर। उसके पास क्या है, उसके पास माउस है, कीबोर्ड है, स्पीकर है। तो कैसे एक्सेस करेगा, किसे मैनेज करेगा, वो डिसाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलीज करता है सिस्टम कॉल्स, इसमें आगे बढ़ने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कर्नल मोड एक्सेस होते हैं, हमने पढ़ा भी। सिस्टम कॉल रिलीज करते हैं, सिस्टम कॉल्स के थ्रू लाइब्रेरी रूटीन्स कुछ चीज़ें होती है, मैं बताऊंगा।
फिर सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम, यूजर प्रोग्राम, ये यूजर मोड के कुछ कुछ फीचर्स होते हैं, और फिर यूजर्स इन तीनों चीज़ को एक्सेस कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये मोर एब्स्ट्रैक्ट, ये लेस एब्स्ट्रैक्ट, इसका मतलब मैं बताऊंगा। तो यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर, इसके बीच का, इसके बीच की चीज, इसके बीच के एक इंटरफेस को, यानी कि एक ऐसा चीज जो इसके बीच में आता है, इसे हम बोलते हैं एपीआई। दिस इज द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। वी हैव ऑल हर्ड द टर्म एपीआई क्या होती है। Many times it becomes necessary to shift the mode from user mode to kernel mode and back from kernel mode to user mode. Exactly. This is known as mode shifting. Shifting from user mode to kernel mode and back to kernel mode to user mode. This is known as mode shifting. मोड को शिफ्ट करना। एपीआई की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, और सिस्टम कॉल इंटरफेस जिसे बोलते हैं। तो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट हमें कुछ डिस्कस करना है, कुछ प्रोग्राम्स नहीं बोल सकते, बेसिकली हमें एक प्रॉपर डिस्कस करना है कि होता क्या है, यूजर मोड, कर्नल मोड, प्रोग्राम्स में कैसे यूज होता है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हमने जितना डिस्कस किया है कि बेसिकली यूजर मोड, कर्नल मोड में प्रीएम्प्टिवनेस क्या होती है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यूनि प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट में डिस्कस किया था कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, प्राइमरी कोर क्या है, कन्वीनियंस है, ये हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे पूरी तरह से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है, फिर प्रोग्राम्स में क्या यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्ट्स क्या होते हैं, सिस्टम इंटरप्ट्स, सिस्टम रूटीन्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।